سالانہ دنیاتی اور انعامی جلسہ 2025 اسلامی تعلیم کی روشنی میں ایک حوصلہ افزائی اجتماع۔ مقام دنیات مکتب احسن العلوم جلگاؤں جاموت ضلع بلڈھانا۔ تاریخ 23 فروری 2025۔ جلگاؤں جاموت میں دنیات مکتب احسن العلوم کا شاندار سالانہ جلسہ منعقد۔ جلگاؤں جاموت ضلع بلڈھانا میں واقع دنیات مکتب احسن العلوم کے زیر اہتمام سالانہ دنیات اور انعامی جلسہ 2025 کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کا مقصد اسلامی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور طلباء کی محنت کی قدردانی کرنا تھا۔ بڑی تعداد میں علماء کرام، والدین اور علاقے کے محترم شخصیات اس برکت والے پروگرام میں شامل ہوئے۔ محترم حضرات، میں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً ہمارے طلباء اور ان کے والدین اور اساتذہ کا اور ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کا جنہوں نے اس کار خیر میں ہر وقت ہمارا ساتھ دیا اور اس کام کو آگے بڑھانے میں ہر وقت تیار رہے، دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کی نسلوں میں دین کے خادمین پیدا فرمائے۔ محترم حضرات، بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے ملک میں اس وقار مند مکتب کے بانی اور صدر حافظ مقصود چاند صاحب کا اس جلسے کے انعقاد میں اہم کردار رہا۔ انہوں نے جلسے کے دوران مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا اور اپنی تقریر میں اسلامی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جس کے نتیجے میں آج دین صحیح شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ فجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین۔ محترم حضرات، میں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً ہمارے طلباء اور ان کے والدین اور اساتذہ کا اور ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کا جنہوں نے اس کار خیر میں ہر وقت ہمارا ساتھ دیا اور اس کام کو آگے بڑھانے میں ہر وقت تیار رہے، دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کی نسلوں میں دین کے خادمین پیدا فرمائے۔ ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے یہ پروگرام انتہائی بہترین انداز میں منعقد کیا گیا۔ حافظ مقصود صاحب کا تعلق احمد آباد سے ہے، مگر وہ جلگاؤں جاموت میں اسلامی تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو لمبی عمر اور کامیابی عطا فرمائے۔ جلسے کے اختتام پر بھی انہوں نے اپنے خاص انداز میں پروگرام کو رخصت کیا، جو حاضرین کے دلوں پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ کیا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی ترانے پیش کیے گئے۔ اسلامی تعلیم کی اہمیت پر علماء کرام نے روشنی ڈالی۔ محنتی اور ہونہار طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے روحانی نصیحتیں دی گئی۔ سرپرست حضرت اقدس مفتی عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مہمان خصوصی حضرت مولانا ابرار صاحب ہیور کھیڑ اور حضرت مولانا یونس صاحب خامگاؤں۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے محترم علماء کرام نے بھی جلسے میں شرکت فرمائی۔ اس پروگرام میں نمایاں ترقی حاصل کرنے والے طلباء کو خاص انعامات سے نوازا گیا۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو سائیکلیں دی گئی، جبکہ دوسرے طلباء کو مختلف انعامات دیے گئے۔ اس کے علاوہ
पूरे साल बगैर गैर हाजिर रहने वाले तलबा को साइकिलें और खास तौर पर इज्जत इनाम से नवाजा गया। क्योंकि ये बच्चा वो बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 4.5 साल या 4.5 साल है, लेकिन पूरे साल इस बच्चे की एक भी गैर हाजिरी नहीं थी और बहुत मासूम बच्चा है। वो फाजिल मुबीन, उसको स्टेज पर भेजा जाए। भाई जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो जरा आगे आ जाओ, सारे लाइन में लगाओ। प्रोग्राम में मौजूद उलमाए किराम ने इस्लामी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। मौलाना अबरार साहब ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि दिन की तालीम को आम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हाफिज चांद साहब जैसी शख्सियतें काबिल तहसीन है जो बच्चों की दीनी तरबियत के लिए अपनी मेहनत और वक्त लगा रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ बच्चों की इस्लाही तालीम का बेहतरीन जरिया है बल्कि पूरे समाज की तरक्की और भलाई के लिए भी निहायत अहम है। अब उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा को शौर को पहुंचा, कम से तो वालिदा ने उसे मकतब में भेजा। उसी वक्त उसका वही वक्त होगा और फरमाया जब मकतब में पहुंचा तो उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फरमाया जब इस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अपनी मुन्नी जुबान से मेरा नाम लिया, मेरी मेहनत जोश में आ गई। इसका नन्हा मुन्ना बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले, मैं इसके बाप को बजा कैसे अजाब दूं? मैंने सारे अजाब को रहमतों से बदल दिया। अगर ये बात आपके जहन में आ जाए तो मकासिद के फजीलत के लिए और इसकी तमाम जितनी अहमियत हो सकती है सबके लिए। उन्होंने तमाम वालिदैन से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को ऐसे मकतबात से जोड़े रखे ताकि उनकी दीनी और अखलाकी बुनियाद मजबूत हो सके। हजरत मौलाना यूनुस साहब खामगांव ने फरमाया कि दीनी तालीम सिर्फ एक रिवायत जरूरत नहीं बल्कि अखलाकी इस्लाह और जिंदगी के बेहतरीन तौर तरीके सिखाने का एक अहम जरिया भी है। अगर औलाद दीनदार है, माल हलाल कमाया, दीन पर लगाया, माल नेमत है और हराम कमाया, हराम में लगाया अजाब है। तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए पैदा किया मौत व हयात को, लियबलुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन उम्दा बढ़िया अमल करता है। तो अल्लाह के पास अमल मतलूब नहीं बल्कि उम्दा अमल मतलूब है। इसीलिए मकातिब हमारे अपने दियार में चल रहे, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन मुनज़्ज़म होना चाहिए कि जो मुनज़्ज़म होगा। इसलिए मकतब की तरक्की के लिए काबिल असातिज़ा और मुनज़्ज़म मकतब उसका एक निसाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें इस मकतब में देखने में आई कि ये मकतब मुनज़्ज़म चल रहा है। तलबा और तालिबात ने अपने तमाम प्रोग्राम को पेश किया और बड़ी उम्दगी के साथ पेश किया। उन्होंने वालिदैन और बच्चों को ये नसीहत की कि वो हमेशा दिन की तालीम को अपनी जिंदगी का पहला मकसद बनाएं। जलसे के इख्तिताम पर हाफिज मकसूद चांद साहब ने दोबारा तमाम मेहमानों, उलमाए किराम और तालिबे इल्म का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अपने पुरअसर तकरीर में उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि इल्मी इस्लामी तालीम की शमा को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने फरमाया कि इल्म एक ऐसा नूर है जो जहालत की तारीकियों को मिटाता है और दिलों को मुनव्वर करता है। इसलिए हम सब
पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि दीन इस्लाम की तालीमात को न सिर्फ खुद सीखे बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाए। हाफिज साहब ने इस्लामी तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी इल्म से आरास्ता करे ताकि वो एक बेहतर और पाकीज़ा जिंदगी गुजार सके। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम ने इल्म को बेपनाह अहमियत दी है और यही वजह है कि हर दौर में उलमाए हक ने इस्लाम की रोशनी को फैलाने का बीड़ा उठाया। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी आमद से आज की हमारी ये मजलिस अल्लाह ताला ने कामयाब बनाई। अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमाए। आने वाले मेहमानों के लिए जो भी तकलीफ बैठने उठने में या किसी चीज़ में हुई हो उसके लिए माफ़ी के खास्तगार हैं और आइंदा इंशाअल्लाह इससे बेहतर इंतज़ाम करेंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर उसके लिए निज़ाम बनाया जा सके। आखिर में ऐलान ये है कि अभी इशा की नमाज होगी मस्जिद में और जमात जितने आ सकेंगे उतने, बाकी दूसरी जमात बनेगी। तो इशा की नमाज होगी, उसके बाद खाना है। मोहतरम हजरत मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ पर मजलिस का इख्तिताम करें। फजज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा। आखिर में जलसे के इख्तिताम पर हजरत मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने एक पुरअसर रूह परवर दुआ करवाई। दुआ में इल्म की बरकत, बच्चों की कामयाबी, माँ बाप की सेहत और सलामती, मुल्क और उम्मत की भलाई और तमाम इंसानियत के लिए दुआएं मांगी। मजलिस में मौजूद हजारों अफराद ने बड़े अदब और अकीदत के साथ हाथ उठाकर आमीन कही और इस रूहानी माहौल से अपने दिलों को रोशन किया। ये मुबारक जलसा कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा, जिसमें बड़ी तादाद से उलमाए किराम, तालिबे इल्म और आम अफराद शरीक हुए। सबने इस्लामी तालीम की रोशनी से अपने दिलों को मुनव्वर किया और ये अहद किया कि वो इल्म दीन की खिदमत में अपना किरदार अदा करेंगे। इसकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी आमद से आज की हमारी ये मजलिस अल्लाह ताला ने कामयाब बनाई। अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमाए। आने वाले मेहमानों के लिए जो भी तकलीफ बैठने उठने में या किसी चीज़ में हुई हो उसके लिए माफ़ी के खास्तगार हैं और आइंदा इंशाअल्लाह इससे बेहतर इंतज़ाम करेंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर उसके लिए निज़ाम बनाया जा सके। आखिर में ऐलान ये है कि अभी इशा की नमाज होगी मस्जिद में और जमात जितने आ सकेंगे उतने, बाकी दूसरी जमात बनेगी। तो इशा की नमाज होगी, उसके बाद खाना है। उलमा इकराम के लिए स्टेज के पीछे हॉल है, वहाँ पर खाने का उनका नज़्म है। वो वहाँ पर नमाज के बाद तशरीफ़ ले जाएं तो उनके लिए हदिये का भी वहाँ पर इंतज़ाम है। और उलमा इकराम के अलावा, हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा के अलावा कोई दूसरे अहबाब वहाँ पर न जाएं, सिर्फ उलमा इकराम के लिए वहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है। मस्तूरात को अभी खाने से, दुआ के बाद फ़ौरन खाने से फारिग कर दें और उनको निकलने के लिए आसानी मुहैया कर दें। उसके अब मैं हमारे बहुत ही मोहतरम हजरत मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ पर मजलिस का इख्तिताम करें। फजज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عزك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا
وَاتُّبْنِ عَلَىٰ عَمَّلْ أَغْنَيْتُهُ بِالْخَلْقِ. یا اللہ تیری خصوصی فضل سے رحم سے رحمت للعالمین حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، نبیوں پیغمبر علیہ السلام کے طفل صدقے میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طفل صدقے میں، خاندان چشتیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسی کے طفل صدقے میں، خیر و برکات مرضی محبوبیت فوز و فلاح فی کل امور ذالک فی ھذا من عندک. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سب کو معافی کا فیصلہ فرما اور دنیا آخرت دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.